अरे Sir, just to switch on to English, I wanted to welcome everybody who are here and today grace the occasion to open our Stree Counseling Center, which is a big milestone in making this Women's Forum activities happen in the Twin Cities. And to make this happen, it was not an easy task. It had all the vision of our CP sir and also the hard work we have put in the last 1 year amidst the pandemic situation. There were many cases being referred to us. We were finding it difficult to catch up with people and meet people, and that's when our Joint Commissioner has suggested that we can have a space in near to Golconda Police Station, and this is a very comfortable space. We started connecting with people here, and the community volunteers have also been feeling very comfortable at the convenience created by the police authorities. And we have initiated almost 30 to 40 cases, sir, in the last 1 year amid the pandemic situation. And we have trained all the 60 volunteers in taking up cases in a professional environment. Apart from the domestic abuse and violence and child abuse cases, we were also able to resolve some family conflicts which cropped up because of the triggers which happened due to the pandemic. The violence at domestic front has increased as per the surveys in the recent past we have seen because of the COVID pandemic, and I think this initiative has made it a good platform for us to convey the family solidarity and also give a ventilation to those who have been affected and survived this kind of situation. I immensely thank all those help the families. Asif Nagar area is a pilot project for us. Very soon we will be looking at other zones and sectors within the Twin Cities, and I hope we would have the same cooperation from everybody in the community. I again welcome everybody and all the volunteers who are here since morning. Thank you. And ma'am and sirs, this is another occasion for us to prove that we are part of the community. Thank you. Respected CP sir, MLA Saab, Additional CP Traffic Anil, Joint CP West Zone Srinivas, ACP Maruti, SHO, then HCHC की तरफ से गीता मैडम, आनंदिता, राजशेखर, सभी यहाँ पे सभी आई स्त्री वॉलंटियर्स और महिलाएं, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक साल पहले HCHC की तरफ से, HCHC एक हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल है, जो एक हमारा अटेम्प्ट है पुलिस और शहर के अलग अलग कम्युनिटी सर्विस के लिए जो हम इकट्ठे हुए हैं कि हैदराबाद सिटी में सेफ्टी और सिक्योरिटी को बना के रखने के लिए, और सेफ्टी और सिक्योरिटी को बना के रखने में महिलाओं के लिए क्या क्या करना है ताकि महिलाएं सेफ फील करें, चाहे वो घर की चार दीवारी में हो और चाहे वो सड़क पे हो और चाहे वो ऑफिस में हो, कहीं पर भी हो, महिलाओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, उसको हम सबसे ज़्यादा अहम मुद्दा मानते हैं। उसी सिलसिले में पिछले साल एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह, एक एक्सपेरिमेंट की तरह गोलकुंडा में ये स्त्री वॉलंटियर्स स्टार्ट किया गया था। और आप जो यहाँ पे आए हैं, आप लोग कुछ तो वॉलंटियर्स हैं और कुछ जो उनसे जुड़े हुए हैं,
एक साल में बहुत सारे परिवारों से बातचीत करी है, बहुत सारे परिवार को दोबारा मिलाया है, एंड फॉर दैट आई एम ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू ऑल स्त्री वॉलंटियर्स। और मेरे ख्याल से सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले एक ज़ोरदार तालियां हो जाएं सभी स्त्री वॉलंटियर्स के लिए। थैंक यू। आप सब जानते हैं कि पुराने ज़माने में या फिर अभी भी गाँव में, या पुराने ज़माने में जैसे कहते थे कि अगर एक गांव का बच्चा सबका बच्चा होता था, अब उसकी पढ़ाई में, उसके रहने में, उसके चाल चलन पे हर किसी का हक होता था। मुझे याद है कि मतलब बचपन में कोई भी आपका रिश्तेदार आएगा, वो आपके उसमें इतना ही इंटरेस्टेड होगा जितने आपके माँ बाप होंगे, और उसको आपको ठीक करने के लिए, आपको रास्ता दिखाने का उतना ही हक होगा जितने आपके माँ बाप हैं। मुझे नहीं पता आप में से कितनों के साथ ऐसा हुआ होगा कि कोई चाचा मामा मिलने आया और आप पढ़ाई नहीं कर रहे या आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो एक आध थप्पड़ लापड़ लगा के जाता था, होता था पहले ज़माने में। बट शहरों में और आजकल हम लोग इतने ज़्यादा अपने न्यूक्लियर फैमिली टाइप में रह गए हैं कि सब कनेक्शन ख़त्म हो गए हैं। इसी तरह से पहले ज़माने में या गांव में जो भी एक सोशल प्रेशर रहता था, जिससे कि किस तरह का बिहेवियर करना है, चाहे वो पति का पत्नी के प्रति बिहेवियर हो, हस्बैंड वाइफ की बात ही ना हो, एक सोशल प्रेशर रहता था कि भाई हमें इस तरह से बदनामी होगी, गांव में बाहर नहीं, एक बड़े लोग क्या कहेंगे, तो वो एक लाज, एक शर्म, एक वो रहती थी जिससे कि परिवार चलते रहते थे। और जहाँ कभी कोई प्रॉब्लम आती थी वो परिवार में या गांव में या कम्युनिटी जो लार्जर है उसमें ही सेटल हो जाती थी। अब आज हम लोग शहरों में रहते हैं या फिर अब जो न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट है, तो ऐसी स्थिति आ गई है कि महिलाओं के लिए, पहले में अगर आपको कोई परेशानी आ रही है तो परिवार में 10 महिलाएं, अगर सास से भी दिक्कत आ रही है तो भी 10 और अवेलेबल हैं जिससे पास जाके आप अपना बात बता सकते थे, और उनमें से कोई ना कोई ऐसी होती थी जो आपकी सास को भी कंट्रोल कर लेती और बहू को भी समझा लेती। तो वो वाला चीज़ अब शहरों में और इसमें नहीं होता, और इसी में इन अ वे यही गैप को ब्रिज करने के लिए ये अब स्त्री वॉलंटियर्स हैं कि आपकी जो परेशानी है, जो मसले आपके सामने आ रहे हैं, वो किस तरह से आप आके बताएं, और परिवार को एक रखने के लिए किस तरह से उसे इकट्ठा करके हम लोग कोशिश करें कि परिवार चलता रहे। हमारे पास, जैसे आप सब जानते हैं, भरोसा सेंटर है, पिछले 5 साल से चल रहा है। इस साल हम भरोसा सेंटर की 5वीं सालगिरह मना रहे हैं। 5 साल से भरोसा सेंटर डोमेस्टिक वायलेंस और के लिए बहुत हज़ारों केस कर रहे हैं, और हमारा पहला अटेम्प्ट यही रहता है कि परिवार बना रहे, एकजुट रहे। परिवार को तोड़ने का अटेम्प्ट हमारा नहीं रहता। हाँ, जहाँ इतना सितम हुआ या इतना खराबी है कि हम नहीं चाहते कि लड़की को आगे कुछ बहुत दिक्कत होगी, साथ रहे, वहाँ हम लोग पुलिस केस भी करते हैं, आगे भी करते हैं। पर पहली प्राथमिकता या पहली प्रायोरिटी यही रहती है कि परिवार एकजुट बना रहे, और इसी में वहाँ पे जैसे काउंसलिंग करते हैं, अब सब कोई भरोसा सेंटर तक आने में और दूर पड़ता है हैंडलिंग के लिए, इसीलिए ये स्त्री वॉलंटियर यहाँ पे हमने शुरू किया। आज ये जो सेंटर शुरू किया है उससे ये है कि आप एक सेफ एनवायरनमेंट में, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में बैठ के बातचीत, क्योंकि जो ये मियाँ बीवी का मामला है या जो ये परिवार के मामले हैं, ये 5-10 मिनट में सॉल्व नहीं होते। ये ऐसे मामले हैं जिनमें घंटों और दिनों लगते हैं। तो इसमें जब तक कि सारी पार्टी तसल्ली से आसपास बैठे ना, जब तक उनसे बातचीत ना हो, तब तक ये मामला सॉल्व नहीं होता। तो इसीलिए अब आज एक कंफर्टेबल जगह मिलेगी वॉलंटियर्स को भी और जितने भी कंप्लेनेंट आ रहे हैं, ताकि बैठ के बातचीत करें। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि हम सिटी में हम लोग एक दूसरा भरोसा सेंटर ऑलरेडी साउथ जोन में जहेरा नगर में उसकी फाउंडेशन स्टोन ऑलरेडी रखा चुका है और इस साल वहाँ पे बन जाएगा। उसके साथ साथ
हम लोग 17 और फैमिली काउंसलिंग सेंटर शुरू कर रहे हैं। हर पुलिस डिवीज़न में सिटी में एक फैमिली काउंसलिंग सेंटर होगा, ताकि महिलाओं को बहुत दूर ना जाना पड़े, आपके पास में हो। वो जो काउंसलिंग सेंटर है और जो स्त्री का ये प्रोग्राम है, उसको हम साथ में मर्ज कर लेंगे, ताकि आपको बेस्ट सर्विस मिले। एक बात मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी, जितनी भी महिलाएं यहाँ पे आई हैं, कि परिवार या हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता है बड़ा नाजुक रिश्ता होता है। और आप लोग सब खाना बनाती होंगी, तो किसी भी सब्ज़ी में अगर नमक कम हो जाए तो उसमें जायका नहीं आता, और अगर ज़्यादा हो जाए तो वो जहर के जैसे लगता है। तो इसी तरह से हमारे अलग अलग रिश्ते हैं, उन रिश्तों को निभा के रखना, उन रिश्तों को बना के रखने के लिए हम लोगों को सबको, चाहे महिला हैं, चाहे आप सास हैं, चाहे आप बहू हैं, चाहे आप कोई बेटी हैं, चाहे आप ननंद हैं, और चाहे आप मेल्स जो पति हैं या ससुर, जो भी है परिवार में, पूरे परिवार को एक धागे में बांध के रखने की ज़रूरत होती है। और उसमें हर किसी का रोल होता है, और हर किसी को, चाहे मर्द हो या औरत हो, हर किसी को उसको एक साथ इकट्ठा करके, एक साथ पिरो के उसको रखने की ज़रूरत है। और इसी में हमारी ये कोशिश रहती है कि आप पे कोई सितम ना हो। जहाँ तक पॉसिबल है परिवार एक बना रहे। जहाँ ऐसा है कि चीज़ें ऐसी हैं जिनको अब जोड़ के रखना मुश्किल नहीं है, जोड़ के रखना पॉसिबल नहीं है, वहाँ डेफिनेटली हम पुलिस में हैं, आपको अंत आगे तक, जहाँ तक आपको ज़रूरत है, आपकी मदद करेंगे। मैं HCHC की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये शुरू किया, और जितने भी स्त्री वॉलंटियर्स हैं, आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप अपना टाइम, आप ये वॉलंटरली कर रहे हैं, हम लोग कोई आपको वो नहीं कर रहे हैं, आप अपने जज्बे से, अपने मन से अपना टाइम निकाल कर ये काम कर रहे हैं, ये सर्विस कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी सर्विस है। कोई भी परिवार को एक साथ रखना, किसी भी महिला को, जैसे अभी एक हमारी वॉलंटियर बोल रही थी कि जब भी कोई महिला हमारे पास आती है, अपने दुख और पीड़ उसमें आती है, तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि उसको एक सांत्वना दें, उसको कंफर्टेबल करें, ताकि वो कम से कम अपना दुख हमें बता पाएँ। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही एक अच्छा सर्विस आप लोग कर रहे हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि इस सेंटर से इस इलाके के महिलाओं को हिम्मत मिलेगी और परिवार एकजुट होके रहेंगे। थैंक यू। आप सबों को हमारा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस फंक्शन के हमारे चीफ गेस्ट MLA साहब जनाब कौसर मोइनुद्दीन साहब, लोकल हमारे कॉरपोरेटर बदरुद्दीन साहब ने मुझे एक एश्योरेंस दिया है, वादा किया है कि 1 महीने के अंदर मुझे यहाँ दोबारा बुलाएंगे CCTV कैमरा के इनॉग्रेशन के लिए। तो मैं MLA साहब से गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा बदरुद्दीन साहब पर नज़र रखें कि ये काम, अपने वादा को वो जल्दी पूरा करें। हमारे पीस कमेटी के सभी मेंबर्स, जिन्हें बहुत समय बाद आज मुझे मिलने का मौका मिला, हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल के मैडम गीता गोरती, सोफिया सिद्दीकी मैडम, आनंदिता मैडम, राजशेखर और हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल के सभी एक्टिव पार्टिसिपेंट, हैदराबाद सिटी पुलिस में हमारे कलीग ऑफिसर्स शिखा गोयल, अनिल कुमार, AR श्रीनिवास, मारुति, सभी ऑफिसर्स और ख़वातीनो हजरात, आज ये बहुत खुशी का माहौल है कि आसिफ नगर डिवीज़न और वेस्ट जोन के तहत ये स्त्री काउंसलिंग सेंटर का आज इनॉग्रेशन हुआ। दोस्तों, हैदराबाद शहर के बारे में
बहुत सी बातें होती हैं। आज की तारीख में हिंदुस्तान में हैदराबाद शहर हर एक अच्छी चीज के लिए जाना जाता है, चाहे वो नई नई इन्वेस्टमेंट हो, बड़ी बड़ी कंपनियां बाहर से आकर हैदराबाद में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। पहले केवल आईटी सेक्टर में ही नाम था, लेकिन अब मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, रिसर्च सेंटर, और ये कोरोना के समय जो हमारे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स ने अच्छा काम किया है, दूसरे राज्यों से, दूसरे सिटीज से क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट हैदराबाद में आकर इलाज कराते हैं। तो इससे पता चलता है कि हम लोग हैदराबाद को एक नए क्लाइमेक्स, एक नए मुकाम की तरफ लेकर चल रहे हैं, जिसमें हर एक इंसान का कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। हैदराबाद एक ड्रीम डेस्टिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। हैदराबाद में हमारे जो भी सिटीजन्स हैं, चाहे वो खवातीन हों, मेल सिटीजन्स हों, बच्चे हों, एल्डरली सिटीजन्स हों, बुजुर्ग हों, सबको यहाँ रहने में एक सेंस ऑफ सेफ्टी, सिक्योरिटी, सेंस ऑफ कंफर्ट और एक खुशी का फीलिंग होना चाहिए। और इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम लोग लेडीज़ का, खवातीन के सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखें। और जब हम खवातीन की सेफ्टी सिक्योरिटी का बात करते हैं तो फैमिली में उनकी ट्रीटमेंट कैसी होती है, घर के लोग उनके साथ कैसा व्यवहार, बिहेवियर करते हैं, ये सब भी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी छोटी मोटी गलत फहमियों के कारण फैमिली टूटने के कगार पे आ जाता है। हमारा ये कभी नहीं ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए कि जल्दी केस बुक करके फैमिली को ब्रेक कर दो, कभी नहीं। पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि बातचीत के जरिए समझ के एक दूसरे को जहां तक हो कि बिना केस मुकदमा के ही इशू को सॉल्व किया जाए, यही हमारी कोशिश होनी चाहिए। और इसमें सभी लोग को मिलकर काम करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई विमेन के ऊपर, खवातीन के ऊपर एट्रॉसिटी कर रहा है तो उसको बर्दाश्त करें, नहीं, वो भी नहीं। सबसे पहला करेज, सबसे पहला हिम्मत और हौसला उसी को माना जाता है जो किसी भी इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाए। और ये हम सब का हक है, और इस सब में ये हमारी जिम्मेवारी भी है कि अगर किसी को हम, हमारे नज़र के सामने, हमारे नॉलेज में अगर किसी के ऊपर ये एट्रॉसिटी हो रहा है तो उसको फौरन रोकें, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। इन्हीं सब के लिए आपके सर्विस में, आपके सेवा के लिए, आपकी सिक्योरिटी के लिए स्त्री काउंसलिंग सेंटर आज यहाँ शुरू हुआ। दोस्तों, पुलिस डिपार्टमेंट का रोल केवल क्राइम प्रिवेंशन और डिटेक्शन का नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट का रोल ये भी है कि आपके अंदर एक अवेयरनेस पैदा करे, जिसमें आपको आप किस तरीके से समाज में रहना है इसकी जानकारी हो, आपका हक क्या है आपको इसकी जानकारी हो। जो पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली के तरफ से जो लॉज या एक्ट बनती है उसके तहत आपको क्या क्या पावर्स है इसके बारे में जानकारी हो, वो अवेयरनेस क्रिएट करना भी पुलिस का ड्यूटी है। इसीलिए अगर आप लोग कभी किसी चीज़ के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे काउंसलिंग सेंटर में आप बात करिए, और हमारे ऑफिसर्स आपको ज़रूर गाइड करेंगे, काउंसलर्स आपको ज़रूर गाइड करेंगे। हैदराबाद शहर जितना भी डेवलप करे, लेकिन हैदराबाद शहर का सबसे बड़ा लोगो जो है वो आपके चेहरे पर आने वाली मुस्कुराहट है। और इसीलिए हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से हमेशा यही कोशिश करते हैं कि हैदराबाद में जो भी लोग रहें, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट में कभी कमी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, आज हैदराबाद सिटी के तरफ से हम लोग जो भी मेहनत कर रहे हैं, खास करके पिछले 1.5 साल में कोरोना के से रिलेटेड बिना पब्लिक कोऑपरेशन के कुछ पॉसिबल नहीं था। चाहे वो लॉकडाउन का माहौल हो, चाहे वो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट का बात हो, मेडिसिन्स का बात हो, इसेंशियल सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन का बात हो,
हर जगह आपकी मदद रही है और हमारे हैदराबाद शहर में जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे वो कॉरपोरेटर्स हों, चाहे वो एमएलए साहब लोग हों, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब लोग हों, मिनिस्टर्स हों, सभी लोग ने मिलकर हर डिपार्टमेंट को एक साथ लेकर चला है, जिसमें कि हैदराबाद में कम से कम नुकसान हो ये कोरोना के कारण। आज जब हैदराबाद का कंपैरिजन आप बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर और बड़े बड़े शहरों से करते हैं तो सबसे कम मौतें हुई है हैदराबाद में कोरोना से, सबसे कम लोग सफ़र किए हैं हैदराबाद में कोरोना से। ये सब क्रेडिट जाता है आप सबको, आपके लीडर्स को, सभी डिपार्टमेंट्स को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग ढीले हो जाएं। जैसा कि आप जानते हैं बड़े बड़े डॉक्टर्स अभी भी कहते हैं कि अभी हम लोग को अलर्ट रहना है आगे वाले समय के लिए। तो आज इस मौके पे एक बार फिर मैं अपने डिपार्टमेंट के तरफ से सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे पूरे ऑफिसर्स, आपको मालूम है हमारे यहाँ की जो शी टीम है वो एक ब्रांड बन गई है पूरे देश के लिए। और सिरिसा मैडम यहाँ बैठी हुई हैं जो कि शी टीम की इंचार्ज हैं, उनके मेहनत को मैं बहुत बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। और इसी तरीके से हमारे सभी ऑफिसर्स जो यहाँ हैं सभी को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। और किसी ने एक बहुत अच्छी लाइन कही है, वो मैं आपके लिए दोहराता हूँ, जो कि हम सब पर बहुत अच्छे तरीके से लागू होता है। मुझे मस्जिदों की खबर नहीं, मुझे मंदिरों का पता नहीं। मेरी अजीज़ी को कबूल कर, अजीज़ी मतलब हम्बलनेस, हम कितने पोलाइट हों। मेरी अजीज़ी को कबूल कर, मुझे और दर्द मलाल दे। किसी दर्दमंद के काम आऊं, किसी डूबते को उछाल दूं। तो यही हमारा मोटिव, यही हमारा ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए कि जब कभी भी किसी को तकलीफ में देखें, उसको किस तरीके से हम मदद करें, यही हमारी कोशिश रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।